it's not like Lahore, Karachi, Islamabad, right? The big बिल्कुल cities. तो वहाँ पर कितनी awareness है about sexual harassment or any issue like that? कितनी openly लोग उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं? या if somebody is getting harassed, how openly can that person discuss कि उसके साथ harassment हो रही है? Hi guys, welcome back to my channel. If this is the first time you're watching, welcome to my channel. Today we are starting a series on sexual harassment, and I am collaborating with the UNDP project called Bol Kilab Azad Hindere. And I have the project director with me today, Mr. Maruf Rafiq. He is going to talk to us about the project. He's going to tell us what it's all about and how we can help. So let's go to Mr. Maruf. How are you, Maruf? Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप सुनाएं आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक. Thank you so much for taking time out to speak to us. So I'll just Player is all thank you. So I'll ask you to first of all tell us a little bit about yourself, your professional background, and then this project. So this project is basically covered under United Nations Development Program. As we have acceded to CEDAW, which is a Convention on Elimination of Discrimination Against Women in 1996. So 2010 Act was basically a result of that accession to that treaty, because we are a dualist state, and being a dualist state, we need to nationalize the treaties that we sign at international level. So 2010 Sexual Harassment Act came out, which was to ensure that all professional women have a safe workplace environment. And this project is basically concerning the youth specifically, because we wanted कि हमारे जो students हैं in all over the Pakistan in the universities, they can come forward और वो इसके ऊपर बात करें, और whatever the issues they are facing, तो वो इसके लिए एक proper legal remedy available हो उनके पास. तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली यूनिवर्सिटीज के ऊपर फोकस्ड है. यूनिवर्सिटी ठीक है. तो कैन यू टेल अस कि कौन से एरिया के अंदर आप कर रहे हैं पाकिस्तान में? ये मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान या कोई स्पेसिफिक एरिया है पाकिस्तान की? कौन सी? Well, before 2010 this was the jurisdiction of federal, लेकिन चूंकि 18th amendment के बाद there has been a devolution of powers to the provincial assemblies, therefore our focus will be पंजाब. तो हम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर फोकस कर रहे हैं कि, और इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक एम है वो है कि टू इंश्योर and to establish anti-harassment committees in each and every university of Punjab. You're saying कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए जो सेक्सुअल हरासमेंट के साथ डील करती है, राइट? Am I understanding that right? ठीक है. अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये आपके स्टेक होल्डर्स कौन है इस प्रोजेक्ट में? क्योंकि आप तो यूएनडीपी से ये स्टार्ट करें ना, इनिशिएट लिया आप. बिल्कुल. The stakeholders involved primarily basically हम UN Women को अंदर लेके आ रहे थे. Definitely UNDP was there. School of Leadership Foundation was helping us out in the cause. Similarly जो NGOs हैं national level की, जैसे बेदारी हो गई, शराकत हो गई, ये YouTube influencers like you, they were collaborating with us. लेकिन we felt the need के without Higher Education Commission HEC it's not really feasible. So UNDP is basically collaborating with HEC in this regard, ताकि इसकी जो है प्रेजेंस को मजीद इंश्योर प्रॉपरली करवाया जा सके विद लीगल बैकअप, और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करवाई जा सके. आप स्टूडेंट्स को ही पिक कर रहे हैं एज एम्बेसडर्स, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं. Yes, definitely. Amira, we selected 30 National Youth Policy Forum ambassadors from all over the Pakistan, but we focused on Punjab. So there are like there is one ambassador from Balochistan, there is one
ambassador from KPK in order to include that yes, they should also know that what is happening in Punjab, and there is also an ambassador from Sindh, rural as well as urban. So we have ambassadors from Punjab primarily, जिसमें से around 12 के करीब मेरे ख्याल में there are boys and 18 of them are girls. So they are helping us out or to further our message to the lowest levels. Yes, Okay, so total कितने ambassadors हैं? there are 30 ambassadors. 30. Okay, sorry, I missed that. So अब आप ये कह रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी जो है 2010 के एक्ट के हिसाब से हरासमेंट का जो एक्ट है, आपके पास कॉपी होगी उसकी? Yes, so ये है मेरे पास because I used to work in Federal Ombudsman for Protection Against Harassment. तो So ये this is थोड़ा the सा basically दिखा दें act. ताकि everybody understands कि ये क्या हम बात कर रहे हैं. This is the Act of 2010. आपको इसकी PDF कॉपी जो है इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप इसका सेक्शन 3 पढ़ें, which deals with the inquiry committee, with the establishment of inquiry committee. तो आपको कुछ चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि yes, there must be an inquiry committee of at least 3 professors from which one must be a woman. तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है. जो मिनिमम क्राइटेरिया दैट इज ऑफ द 3. ठीक है, मैं इसको लिंक भी कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फॉर दोज ऑफ यू हु एक्चुअली आई वुड एनकरेज एवरीबडी टू गो एंड सी कि ये एक्ट जो आपको इसकी पीडीएफ की कॉपी मिल जाएगी और आप इस एक्ट को जाके देखें और आप उसके अंदर सेक्शन 3 आप कह रहे हैं एक्ट का, जी उसके अंदर आप जाके पढ़ें कि उसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली ये प्रोजेक्ट. अब आप मुझे बताएं मारूफ कि अगर आप कह रहे हैं कि 2010 के एक्ट के हिसाब से एक कमेटी होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, तो आई एम गेसिंग कि सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोबेबली कमिटीज नहीं होंगी, लेकिन आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम थिंकिंग कि नहीं होंगी. तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एम्बेसडर किसी एक यूनिवर्सिटी में है जहां पर, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी से आप एम्बेसडर ले रहे हैं ना, जिस जगह पे वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अगर कमेटी ना हो, ठीक है, इन प्लेस लाइक इट्स सपोज्ड टू बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन अगर वो नहीं है तो उस केस में वो एम्बेसडर क्या करेगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अमीरा, अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू से कि हमारे जो लॉ इन थ्योरी एंड लॉ इन प्रैक्टिस है उसमें काफी डिफरेंस है. There must be an anti-harassment committee present in each and every university. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है. अभी रिसेंटली भी इश्यूज अराइज हुए थे इन लाहौर एज वेल एज इन कराची, फिर LGS का एक इशू सामने आया. तो अगर कोई ऐसी कमेटी जो होनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो है तो बेसिकली वी आर कंडक्टिंग एन evaluation report on this. तो अगर तो है तो the ambassadors will tell us the names of the professors, उनके contact information, because अगर कोरोना वायरस ये कोविड का पेंडेमिक खत्म हो जाता है तो we might be able to conduct a national level seminar या हम एक सेशन करवा सके जिसमें हम उनको इंक्लूड करें, इनवाइट करें, एक छोटी सी ट्रेनिंग वगैरह दे सकें. लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो सकता तो वी कैन डू दैट ऑनलाइन. और अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हरासमेंट कमेटी नहीं है तो उसके लिए वी हैव एडवाइज्ड आवर एम्बेसडर्स कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली वाइस चांसलर को, दे विल राइट एन एप्लीकेशन जिसमें वो डिमांड करेंगे कि इट इज आवर पर्टिनेंट राइट व्हिच शुड बी ग्रांटेड और टू एस्टैब्लिश एन एंटी हरासमेंट कमेटी इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है. तो अब लेट्स से कि जहां पर हैं कमिटीज, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जहां नहीं होगी तो वो लेटर लिख देंगे अपने चांसलर को, वाइस चांसलर को, और वो दैट इज व्हाट दे कैन डू फॉर दैट. लेकिन अब अगर एक कमेटी है तो फिर उस कमेटी के साथ आप बच्चों में कैसे या स्टूडेंट्स के अंदर कैसे अवेयरनेस रेज करेंगे ये एम्बेसडर्स? बेसिकली इन एम्बेसडर्स को चूज करने का प्राइमरी जो फोकस था वो यही था कि ये जो मैसेज है, जो सेंसिटाइजेशन ऑफ द इशू है, उसको लोएस्ट लेवल तक लेके जाए. बिकॉज हम देखते हैं कि बड़े बड़े सिटीज़ में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में तो बात हो जाती है,
लेकिन जो साइड सिटीज हैं जैसे आपकी मंडी बहाउद्दीन हो गया, दिस इज अ सिटी, गुजरात हो गया, गुजरांवाला हो गया, पंजाब की और जो निचले आप बहावलपुर वाली साइड पे चले जाएं, तो वहां पर एज सच इसकी सेंसिटाइजेशन नहीं है इस इशू की, हरासमेंट की। तो वी वांटेड के बेसिकली वो सेमिनार्स कंडक्ट करके या एक हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेक्चर इवन करके अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो सेमिनार और थ्रू एनी अदर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो अपनी यूनिवर्सिटी में इजीली अवेल कर सकते हैं, और टू यू नो स्प्रेड द मैसेज थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू जैसे हम ये एक वेबिनार भी कर रहे हैं। इसी तरह अब तो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, तो यूथ कैन मेक अ ह्यूज वॉइस इन दैट। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि वो हमारा ही मैसेज जो है वो डाउन ट्रोडन जो यूथ है, जो बिल्कुल निचले लेवल की यूथ है, वहां तक भी लेके जाएं। ठीक है, ठीक है। तो जब हम ये बात करें ग्रास रूट्स लेवल की और हम ऐसे एरियाज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इट्स नॉट लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, राइट? द बिग बिल्कुल। सिटीज़। तो वहाँ पर कितनी अवेयरनेस है अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट और एनी इश्यू लाइक दैट? कितनी ओपनली लोग उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं, या यू नो इफ समबडी इज़ गेटिंग हरास्ड, हाउ ओपनली कैन दैट पर्सन डिस्कस कि उसके साथ हरासमेंट हो रही है? देखिए मेरा दिस इज अ वेरी डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी कि जैसे ही हम कोई वर्ड बोलते हैं जिसमें एक सेक्सुअल वर्ड आ जाए तो वो एक टैबू सा बन जाता है, और पीपल स्टार्ट क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल शेम इन दैट। और लड़कियां तो खास तौर पे इस बात पे दे कैंट इवन टेल देयर फैमिलीज, क्योंकि वो इज्जत और नामूस की बात आ जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि यू शुड नॉट बी गोइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो एक खानदान में कोई ना कोई बंदा होता है जो कहता है कि हमने तो कहा था ना पढ़ाओ बेटी को इतना ज्यादा। तो हुँ, उसकी वजह से वो लड़की इस डर की वजह से डरते हुए वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकती कि आई हैव दिस इशू। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर एंटी हरासमेंट कोई कमेटी ही नहीं इस्टेब्लिश तो वो कहाँ लेके जाएगी इस आवाज को। तो वुमेन आर एक्चुअली फेसिंग, अगर आपने देखा हो कि कराची में पीएचडी स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड, ऑल्दो उसके वो फैक्ट्स क्लियर नहीं हो सके। सम साइड इट वाज अ हरासमेंट इशू, सम साइड इट वाज सम वर्क बर्डन इशू, लेकिन people go for they choose suicide over the to discuss this issue openly, क्योंकि राइट, उनको पता है कि हमारी सोसाइटी में इतनी टॉलरेंस नहीं है कि वो खुल के इस इशू पे बात कर सके। सही है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि जीसीयू लाहौर में भी एक इशू हुआ था जिसमें एक प्रोफेसर वाज डूइंग हरास, आई गेस फिजिक्स प्रोफेसर। तो उसमें फिर वो उसके बाद जो वाइस चांसलर हैं असर जैदी साहब मेरे ख्याल में, उन्होंने बड़े अच्छे से इसके ऊपर फिर ओम्बड्सपर्सन पंजाब के साथ उन्होंने एक डायलॉग क्रिएट किया एंड दे हैड अ सेशन, दे हैड अ ट्रेनिंग वर्कशॉप जिस यूनिवर्सिटी लाहौर। अब आप लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह के इशू आ रहे हैं एंड देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक दिस, तो आप इससे गेज कर सकते हो कि जो एक बिल्कुल साइड लाइन यूनिवर्सिटीज हैं उधर क्या हो रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ मारूफ़ कि अगर इतना बुरा हाल है, जो कि है, तो उस केस के अंदर हम जो ये प्रोजेक्ट है आपका, इसके अंदर आप क्या इसकी आउटपुट आप क्या चाह रहे हैं? यानी कि आर यू ट्राइंग टू ओनली मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब एक फॉर स्टार्टर्स कि कमिटीज़ कम से कम हों, या are we also looking for creating awareness amongst the students, the people over there? क्या मतलब आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? आप क्या चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट से करना? मेरा दिस इज बेसिकली अ सिंगल स्टेप टुवर्ड्स 1,000 माइल्स जर्नी। तो इसमें हमारी जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटी हरासमेंट कमेटी इन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उसमें अवेयरनेस डेफिनेटली आएगी, सेंसिटाइजेशन ऑफ द इशू आएगी। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो दे कैन टॉक अबाउट इट। इसलिए जैसे एज द नेम सजेस्ट, फैज अहमद फैज की ही एक नज़म है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। तो अभी तक जुबान आपकी ही है, यू हैव टू स्पीक इट अप।
अगर कोई आपको सोशल इवल है तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड और उसके ऊपर आपको बोलना होगा। हम जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, तो मतलब उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कितने बच्चे, क्या परसेंटेज होगी जो हरास हो रही हैं लड़कियाँ, या क्या लड़के भी हरास होते हैं? मेरा परसेंटेज तो डिटरमिन करना डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जो कि हमारे पाकिस्तान में तो जिसका ट्रेंड थोड़ा सा कम ही है। लेकिन इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के लोग इस पे भी काम करेंगे। जहाँ तक आपने ये बात की है कि वेदर males are also victimized in harassment, तो definitely it's a four-way column जिसमें a female can harass a female, a male can harass a male can harass a female, and a female can also harass a male. तो ये एक फोर वे रोड है जिसमें डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, और आपकी जो ये कमिटीज़ हैं, या यूनिवर्सिटीज़ की जो कमिटीज़ होनी चाहिए, ये क्या सिर्फ़ स्टूडेंट्स के साथ जो हरासमेंट होती है उसके साथ डील करने के लिए, या कि अगर किसी टीचर के साथ भी कोई हरासमेंट हो रही हो, चाहे वो टीचर टू टीचर हो रही हो या जैसे, तो वो क्या दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड कि ये कमिटीज़ उन उस चीज़ को भी हल करेंगी, उस मसले को भी? Yes, definitely. Teacher to teacher harassment comes into the workplace environment. तो जो डेफिनेशन हमारी लाहौर हाई कोर्ट की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्क प्लेस की डेफिनेशन है उसमें टीचर टू टीचर एनवायरनमेंट कम्स प्राइमरीली रादर देन स्टूडेंट्स। टीचर के फिर भी थोड़ा सा वो वर्क प्लेस में से आउटस्कोप, लेकिन इसको हमने एक्सटेंसिव क्योंकि इंटरप्रिटेशन किया तो यस दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ वर्क प्लेस, लेकिन स्टिल टीचर तो टीचर टू कम विल दिस। लेकिन उसमें यह है कि मोस्टली टीचर एज सच from students they are not being victimized, being at the more powerful stature. उसमें फिर ये होता है कि there is a disciplinary committee होती है हर यूनिवर्सिटी की, and a student can get stuck off from the university if they harass their teacher whether male or female. लेकिन अगर दो इक्वल लेवल पे टीचर टू टीचर आ जाता है तो डेफिनेटली उसमें फिर ये एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी वर्क, और अगर इसमें फिर किसी किस्म की बायसनेस शो हो तो दे कैन knock at the door of फेडरल ombudsman for protection against harassment। इसी तरह पंजाब ombudsman भी हर प्रोविंशियल लेवल पे बना हुआ है। अच्छा, तो आपको कोई और इस वक़्त है कोई अंदाज़ा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी आउट ऑफ दीज़ 30 यूनिवर्सिटीज़ जिनकी ऑलरेडी कमिटीज़ होंगी? ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाह रहे हैं जानना कि हैं या बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या आपको कुछ we है आपको basically अंदाज़ा? selected students from around like 20 universities, जिसमें से अभी तक जो मुझे रिस्पॉन्स आया that was relating to only 5 to 6 universities जिनको पता था कि that yes they have an anti harassment कमेटी उनकी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट कर रही थी। अदरवाइज मोस्टली द एम्बेसडर्स डिडंट नो कि कोई ऐसी कमेटी होती भी है तो उनको पता भी जिसमें नहीं। अगर आपको इश्यू हो तो आप अपनी आवाज लेके जा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज, ये वो वाले एम्बेसडर्स थे जो हमने 190 स्टूडेंट्स में से उनके इंटरव्यूज, उसके बाद 50 में से फिर 50 इंटरव्यूज किए और उसमें से फिर हमने शॉर्टलिस्ट किया 30 लोग। राइट। तो दे वर द नॉलेजेबल एम्बेसडर्स, उनको भी नहीं था पता, तो फिर आप बाकी तो समझ सकते हैं इस मामले में। एक्चुअली हमारे कंट्री में लॉज़ ऑलरेडी हैं काफ़ी सारे, जो कि अगर इम्प्लीमेंट हो रहे हों तो हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हों। लेकिन हाँ, आई बिल्कुल थिंक हम इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग बहुत वीक हैं इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आप कम से कम उनको एक अवेयरनेस तो हो जाएगी ना, अगर कोई कमिटी नहीं भी उन्होंने बनाई हुई, तो उसके अंदर अवेयरनेस होगी उनको कि ये होनी तो चाहिए बाय लॉ, दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी देयर। सो बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स इट्स रियली डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट, लेकिन आपके ख़्याल में अ, ये लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में, इस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में कितना हेल्प करेगा ये प्रोजेक्ट? आई थिंक दिस प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली हेल्प लॉट, क्योंकि
इससे एक स्टेज सेटिंग होगी, एक सोशल पॉलिटिकल प्रेशर बिल्टअप होगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें हमारे साथ और स्टेक होल्डर्स भी साथ साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई हैव कॉन्टेक्टेड मिस समन एहसन फ्रॉम यूएन वुमेन who has ensured कि they will also be working with us। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अलहदा से from youth policy making committee which we are presently working in पंजाब, एक अलहदा से मिस लॉरा शेरिडन इसके ऊपर काम कर रही हैं विद द हायर एजुकेशन कमीशन कि इसको जो है हम अपने करिकुलम वाइज इसको प्रॉपरली इंश्योर करवा सकें। तो इसमें एक नंबर वन तो सबसे पहले तो सेंसिटाइजेशन ऑफ इशू होगा। और जब जाहिर सी बात है, जैसे ऐसा सेट कि जिस यूनिवर्सिटी में कमेटी नहीं होगी तो द एम्बेसडर्स विल फाइल एन एप्लीकेशन टू द वाइस चांसलर, तो दे विल नो कि यस देयर इज अ फॉलो अप मैकेनिज्म, देयर आर पीपल हु आर कंसर्न्ड विद दिस। और जब whenever there is a follow up mechanism, definitely things come out fruitful, so we are hopeful for the I outcomes think of it's this a really program। good initiative और अल्लाह कामयाब करे आप लोगों को। हाँ जी। और ये है कि वन कैन कीप ट्राइंग क्योंकि दैट्स ऑल वी कैन डू। अब ये है कि एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से भी आई थिंक अवेयरनेस फैलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई थिंक कि ये सोशल मीडिया वगैरह जो है, ये तो अक्सर लोग यूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं चीज़ें, तो ये एक अच्छा ज़रिया है लोगों को अवेयर करने का अबाउट डिफरेंट इश्यूज़। क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स जब इश्यूज़ का लोगों को पता ही नहीं होता कि कोई लॉ है, या उनको पता ही नहीं होता कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। तो आई थिंक इट हेल्प्स कि लोगों को पता लगे कि इन चीज़ों की बातें हो रही हैं, और अगर उनके साथ कुछ हो तो उनको भी आवाज़ अपनी उठानी चाहिए। जी दूसरे बिल्कुल। लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, तो इसलिए हम भी आपको हेल्प करेंगे जितना कर सकते हैं विद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, यू आर अ, हेल्पिंग अस। और हमें उम्मीद है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को मज़ीद दे विल स्प्रेड आउट दिस मैसेज। और आप जैसे सीरीज़ किस पे चलाना चाह रही हैं, तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सी यू वर्किंग ऑन। सो वन लास्ट थिंग आई वांट टू से टू यू, अभी जो आपने बात की है उसी को मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं अपने आप को या दूसरों को इन फाइटिंग सेक्सुअल हरासमेंट? देखिए 68% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ यूथ। और डेफिनेटली यूथ इज़ वेरी मच वेल इक्विप्ड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हम उसका नेगेटिवली मिस यूज़ करते हैं, फिर बैन भी कर देता है, उससे भी उस पर भी हमें पीटीए सॉरी बैन कर देता है, तो उस पर भी हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आप उसका पॉजिटिव यूज़ करें सोशल मीडिया के, डेफिनेटली वी कैन क्रिएट अ होल हम एक आर्मी क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर, जस्ट यूजिंग द सोशल मीडिया। और वो आर्मी किसी भी सोशल इविल, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो या सोशल हो, दे कैन फाइट फॉर इट। तो आई एम रियली होपफुल कि इंशाल्लाह हम इसको जो है वो, और व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि दे विल स्प्रेड दिस मैसेज और वो इसको डिस्कस करेंगे कि यस हाउ कैन वी बिल्ड यू नो किस तरह से हम इस इशू की सेंसिटाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि यस दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू डील विद इट। क्योंकि हमारी एजुकेशनल जो इनरोलमेंट है थ्रू आउट पाकिस्तान इज ऑलरेडी वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशंस। इट इज़ बिलो इवन 50%। तो अगर सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इशू भी बहुत सारी हमारी जो बच्चियां उनको महरूम कर देंगी तालीम जैसे ज़ेवर से, तो वो इससे फिर हमारी एज ए नेशन और कोई नहीं हो सकती महरूम। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम इंशाल्लाह हम आपके व्यूअर्स भी काम करेंगे। मैं एम लुकिंग Inshallah फॉरवर्ड ji. टू इट। Thank you so much, Maruf. Thank you for being with us and for educating us. And I hope कि आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा उसका आउटपुट निकले, और किसी और तरीके से आपकी हेल्प कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ। You can always contact me and I can contact my viewers. And I'd like to say to you guys out there watching us कि प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएँ कि आप क्या समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह इसको फाइट किया जा सकता है, किस तरह दूसरे लोगों को हेल्प किया जा सकता है, और अपनी आवाज़ उठाएँ जब भी कोई इस किस्म की बात हो।
So thank you so much for watching, everyone, and Thank you, see Rami. you next time. Thank you, Maruf. God bless. Allah Hafiz. Good night.